Hello all, welcome to our YouTube channel. So today I have with me our special guest Mr. Kaushik Vishwas who has just cleared the UPSC EPFO EOO examination. So Kaushik, I welcome you to this session Thank you, sir. Thank you, sir. and I hope you will be little relieved now. So has the feeling sinked in you? Yes, sir, it's really relieving. Like after I have my preparation journey is very long, so it has really given me sense of relief, and Great, I could really what I means I can do now whatever I want to do. great, It's great. really great. Kaushik, can you tell our students about your educational and preparation background? Sir, I did my graduation in physics honors. I did it in 2017, and after that, I started preparing for CSA and state PCS. Okay. So, yeah, this has been my journey from 2017 to 2022. So what is the experience in the civil service preparation? Sir, just after my graduation, I just started my preparation like without having any knowledge about how to prepare it and without any guidance. So, just after 1 year, I realized that it would be easy for me for my family to just have a financial backup Right, right. before preparing for it. So I just started preparing for other exams too, like state PCS and the regulatory bodies. Great. So yeah. Kaushik, how you come to know about the EPFO EOO examination? Sir, I came to know from YouTube videos and all those things. Like I just yeah, there were very much advertisement about this post. So I Okay. Right. Kaushik, you were preparing for the UPSC examination and you just saw the notification of EOO examination. So how you planned yourself for both these examinations? Sir, as I said, you like I was mentally prepared to give chance to others examination. I was not relying on only one examination. Just before this notification came out, Okay, so I was really looking for alternative, career so that I could support for my preparation. great. So I think I got this opportunity in a very correct time, just before Right, pandemic. Yeah. right. Kaushik, one more thing I want to know. Ki what were the mistakes you committed in the UPSC CSE preparation, which you avoided in the EPFO EOO preparation? Sir, when I started my preparation, I was really, I really did not having any idea about, like the preparation stage. How should I prepare? How should I prepare for this big examination? So with the time, I realized that the syllabus and PYQ and PYQ are the most important instrument Right, clearing any examination. right. So that I really used in my, later examination like state PCS and this EPFO. Great. That really helped me. Great. Kaushik, one more thing. Since the EPFO EO examination journey is quite long, notification came in January 2020, examination was in September 2021, then the interview was in July 2022. So, since it was a long process, how you motivated yourself throughout this journey? Sir, my main plan was to, increase my chances of getting a job. Like I had to give many attempts. For Okay, example, I took my chances in EPFO, then I took my chances in state PCS. I also took my chances in RBI, NABARD. So I actually wanted to increase my chances of getting a job as soon as possible. great. But it was delayed due to this COVID pandemic. Just yeah, So you want to get entry into the system कि कैसे भी system में घुस जाओ, उसके yeah, बाद अपने जो goals है वो pursue करते रहेंगे. yeah. That was my main plan. Yeah. Great. Kaushik, one more thing I want to know, how you came to know about EduTap. Sir, when I started preparing for EPFO and then regulatory bodies, just before that only, I think 2019 prelims, I think RUTAP started some crash courses for UPSC prelims 2019, I Right, think. right, right. So from there, I started following RUTAP. Great. Then I also started following it for NABARD YouTube sessions only. Yeah. So, how is your experience with EduTap? Actually, sir, yeah, I quite like the free sessions on YouTube. I actually have not no idea about the Great, great, courses. great. Kaushik, one more thing. एक बच्चे के लिए कितना आइडियल टाइम है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ? कितना एक आइडियल टाइम चाहिए होगा? और सिंस यू आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, यू कैन टेल इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूपीएससी स्टूडेंट कि दिस इज द आइडियल ड्यूरेशन यू रिक्वायर फॉर दिस प्रिपरेशन. Sir, I think it would if a student gives enough time in a day, like 6 to 7 hours. I think 6 to 7 months is enough.
for cracking EPFO. I think Great. it would be enough. Great. Kaushik, one more thing. Since it is not a regular examination कि जो हर साल होता है, like UPSC, CSC. So planning for such type of examination is quite difficult because you are not having some latest data about the trends, type of questions. So how you managed for such irregular type of examination? Yeah, so it was in my mind, at the back of my mind, that it is not a regular examination. Even if I prepare it well and I cannot get through this examination, I'll be in nowhere. I'll be back to square one. Right, So, right, so I just thought it, and I just thought, okay, let me also prepare for other exams. It would be just backup for backup plan. So right, right. like that only, I just prepared. So Kaushik, one more thing I would like to edit here कि I met two types of student. One से कि प्लान ए ही होना चाहिए, प्लान बी होगा तो आपका प्लान ए डाइल्यूट हो जाएगा, है ना, फोकस हट जाएगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं, आपका प्लान बी हमेशा होना चाहिए और वो प्लान बी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से ही आपका प्लान बी मीट होना चाहिए. तो आप किस टाइप के स्टूडेंट हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, दोनों में से? सर मैं तो प्लान ए का स्टूडेंट था पहले, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर किसी के पास जेन्युइन गाइड नहीं है और फाइनेंशियल बैकअप नहीं है 2-3 साल के लिए, शायद हमें प्लान बी की तरफ भी मूव करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है. बिल्कुल. अगर फॉर मेरे मेरे हिसाब से, मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे लाइक माय फैमिली इज वेरी फाइनेंशियली वेरी वीक. Although my sister really helped me a lot in this journey, like without her I might not have, like, study properly. So but there was very huge pressure on me that I have to be financially independent. So my father is also very aged, my mother is also the same, so I had to get a job as soon as possible. I had to, get them a relief, at least Right. financial independence, then I can pursue my whatever I want to. सो इसी जो लोगों के पास एक जेन्युइन गाइडेंस नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, शायद उन लोगों को एक सपोर्टिंग कैरियर ढूंढना चाहिए, उसके बाद अपना गोल परस्यू करना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला कौशिक आपने. और यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और था जो शायद आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि आपके बिगेस्ट फोर्स ऑफ मोटिवेशन या फिर हेल्पिंग हैंड्स कौन से थे इस प्रिपरेशन में. तो वन वाज योर सिस्टर, यू एज यू टोल्ड. और कौन कौन से लोगों ने आपको बहुत मोटिवेटेड किया, क्योंकि जनरली सोसाइटी ना डिमोटिवेट करने पे ज्यादा बिलीव करती है, बट यू मस्ट हैव सम मोटिवेटिंग फैक्टर्स. Really, my elder sister, like, who is married now, she is one of the, like, main factor behind my preparation, and her husband, definitely they both have like supported me like hell. Whatever it is, they have supported Great. definitely my mother and father, and I also got emotional and financial support from my girlfriend. Like, they really helped me in this journey. I am really lucky to have them in Good my to life. hear this. Good to hear this. Thank you, sir. Now come to recruitment portion. So how you planned your preparation for the recruitment test? That there were so many components, na, like GS components of UPSC background and some new components like general accounting principle, IR and labor laws. तो आपका डेली शेड्यूल क्या था कि आपने किस तरीके से मैनेज किया इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को? Sir, my plan was to just go through the syllabus. Like, it was a brief syllabus. They just mentioned the topics. Nothing else was there. So मैंने जब आपको बोला कि मेरे दो मेजर कंपोनेंट या टूल ये था कि सिलेबस को देखना और पीवाईक्यू को बिल्कुल. देखना, तो मेरा एक जनरल आइडिया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और मैंने सर्च किया कि प्रीवियस कोई एग्जाम हुआ कि नहीं. 2-3 प्रीवियस केस मुझे मिला, जो कि बहुत कम था. और मैंने भी देखा एपीएफसी का भी एक सिमिलर टाइप का एग्जाम होता है, तो मैंने उससे पता लगाया कि उसका डेप्थ क्या होता है, हर ठीक है. टॉपिक का कुछ तो डेप्थ होगा. एक बिल्कुल, बाउंड्री मुझे मिल गया. बिल्कुल. और मुझे ये भी पता चल गया कि जो भी एक्स्ट्रा और टॉपिक है, लाइक अकाउंटिंग है, इंडस्ट्रियल लाइक रिलेशन, जो लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल, है. या जो भी है, इधर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उतना डीप से नहीं आएगा, वो मुझे पता चल गया. तो मेरा जो नॉलेज था जनरल स्टडीज में, उसमें मैं फोकस किया, क्योंकि वो मुझे लगेगा स्टेट पीसीएस में भी. बिल्कुल. लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, उसके लिए मैंने जो भी फ्री सेस मुझे मिला, उससे मैंने कलेक्ट किया कि हाँ, मुझे जो भी कंटेंट मुझे मिले, वो मुझे एक जगह मैंने नोट किया, और इसी को रिवाइज किया हर बार. ग्रेट, ग्रेट. और जो भी मैंने देखा कि एक डेप्थ से ज्यादा कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने उसको नहीं लिया. मुझे पता था कि मुझे तो 120 में 120 नहीं लाना है.
मुझे इतना ही लाना है कि हाँ मुझे, हाँ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ, हाँ। एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी कौशिक, और ये ना जनरली एक बहुत प्यारी और एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है कि यू क्रिएट योर बाउंड्रीज विद द हेल्प ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। सिलेबस यस विल सर। टेल यू कि क्या प्रिपेयर करना है ना, और पीवाईक्यूज विल बी टेल यू कि कितना प्रिपेयर करना है यस ना, किस सर। डेप्थ तक प्रिपेयर करना है। और बहुत बढ़िया आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी। कौशिक, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि सिंस यू आर फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड एंड आई थिंक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, है ना, यस यू सर। एज यू टोल्ड अस की फिजिक्स बैकग्राउंड था आपका, तो जो हम्म। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग थी, अकाउंटेंसी थी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ था, सोशल सिक्योरिटी था, दिस वर टोटली न्यू टू यू। तो यस सर। उनको फिर आपने किस तरीके से बोला कि मैं इनको किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, आपके सोर्सेज क्या थे उनके लिए? सर मेरे तो क्लास 9 10 पढ़ाई किया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स तो नॉलेज चाहिए था। तो जो यूट्यूब लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल थे हाँ उसको जी, हाँ मैंने जी। ट्राई किया कि देखते हैं एक ठीक है। बेसिक आइडिया मिलता है कि नहीं। लेकिन पहले 5 6 दिनों में जब भी मैं देखने बैठता था मुझे नींद आ जाता था। लेकिन मतलब इतना मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन फिर बिल्कुल। भी मुझे मैंने पुश किया कि ठीक है चलो इसको बैठ के देखते हैं। 5 6 दिन देखते उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया, आने लगा। तो उसके बाद पूरा एनसीईआरटी से मैंने थोड़ा पढ़ा, और जो भी जहाँ से भी मुझे फ्री, जैसे आप लोग टेस्ट कराते थे, और एक चैनल है ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड, जहाँ पे मैंने फ्री लेक्चर्स देखे, एग्जाम एग्जाम क्वेश्चन, सो दे प्रोवाइडेड फ्री लेक्चर्स एंड आई टुक एवरी ऑफ ग्रेट। देम ग्रेट। वेर आई कुड गेट। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपने जीएस के लिए जो स्टैंडर्ड सोर्स थे वो कौन कौन से फॉलो किए, लाइक पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, जनरल साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, आपके सोर्सेज क्या थे? सर जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो मेरा सोर्स था लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ जी। और 11 का एक टेक्स्ट बुक आता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। एट वर्क, वो किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने प्योरली एनसीईआरटी पे और स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम। रिलाई किया। हाँ ये दोनों। और एक था इकोनॉमी के लिए मैंने पूरा एनसीईआरटी किया था, मतलब उससे बाहर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, और करंट अफेयर्स जो भी बहुत है बढ़िया। उसको किया था। और जनरल साइंस के लिए? जनरल साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी पे बहुत रिलाई किया था, और मैंने देखा था कि यूपीएससी का ये ट्रेंड भी है कि ये जो भी प्रीवियस ईयर्स आता है किसी भी एग्जाम में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करते हैं बिल्कुल यूपीएससी। बिल्कुल, थीम सेम तो रहता है। हाँ हाँ, तो उसी को मैंने शायद इधर उधर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कलेक्ट किया, उधर उसी को रिवाइज किया बार बार। बहुत बढ़िया। एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं कौशिक आपसे कि आपने जनरल इंग्लिश एंड जनरल मेंटल एबिलिटी कैसे प्रिपेयर किया, मतलब वो भी एक अगेन पेन पॉइंट है बच्चों को काफी ना, तो आपने कैसे उसको फिर अपना स्ट्रांग बनाया एरिया? सर ये मेरा जो स्ट्रेटेजी था इंग्लिश के लिए, वो मेरा स्ट्रेटेजी अराउंड था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दूँ इंग्लिश के लिए। मेरा थोड़ा सा आइडिया था, ग्रामेटिकल आइडिया, तो वो आइडिया था, लेकिन मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ा नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, टेस्ट दिया बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी मुझे लगा मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया इंग्लिश का। वो भी एक मैराथन सेशन होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, हाँ जी, हाँ सीजीएल जी। का होता है। हाँ जी, तो हाँ जी। इधर पे बहुत सारा मैंने देखा, टेस्ट दिया, तो उधर से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हाँ ऐसे करना होता है। बहुत बढ़िया। कौशिक, एक चीज ना मुझे आपकी बातों से सुनने को मिली कि आपने इंटरनेट का बहुत पॉजिटिव यूज किया अपनी प्रिपरेशन में। तो हाँ जनरली ना बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर एक बाउंड्री सेट करें कि देखो इससे बाहर हमें इंटरनेट पे टाइम नहीं लगाना है, इतना ही टाइम लगाना है। तो आपके मतलब कैसे होता था, किस तरह आप प्लान करते थे कि देखो इंटरनेट मेरे लिए इतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं? ये बाउंड्री कैसे सेट करी आपने? सर मुझे ये भी होता था कि मैं बहुत देर तक सामने, मतलब मेरे मोबाइल के सामने नहीं बैठ सकता। मुझे हार्ड हार्ड कॉपी से पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ये भी मुझे पता था कि मेरे पास अवेलेबल सोर्सेस है नहीं। बिल्कुल। तो मुझे जितना भी ऑनलाइन से सोर्सेस मिल रहा था, मैं उससे नोट किया जा रहा था, ताकि मैं हार्ड कॉपी से बाद में पढ़ सकूं। तो अगर मैं नोट कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो टाइम का पता चल जाता था कि ठीक है, मैंने अब आंख दर्द कर रहा था, बिल्कुल करता था, तो बिल्कुल। मुझे पता चल जाता कि हाँ इतने तक मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे बुक पढ़ना है। बहुत बढ़िया। कौशिक, एक और चीज पूछूंगा कि देखो करंट अफेयर ना एक बहुत ही वास्ट एरिया है, और यूपीएससी के करंट अफेयर डिफरेंट होते हैं, स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ईपीएफओ ईओ में थोड़ा सा स्टेट पीसीएस से मैच कर जाता है। तो किस हम्म। तरीके से आपने करंट अफेयर प्रिपरेशन की ईपीएफओ ईओ की, और आपके सोर्सेज क्या थे करंट अफेयर्स के लिए? सर मेरे जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किया था, एक चैनल था यूट्यूब पे, अभी भी है, ओनली आईएएस करके।
ओके। तो उधर पे हर दिन एक एडिटोरियल आता है और एक प्रीलिम्स बूस्टर आता है। तो वो मैंने रिलीजियसली फॉलो किया, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी और ईपीएफओ के लिए भी। उससे थोड़ा सा मुझे मदद मिल गया बहुत बढ़िया। अच्छे से। बहुत बढ़िया। और कौशिक, अब एक बात और जो मैं पूछना चाहूंगा, और काफी बच्चे ना डिसएग्री करते हैं, लेकिन हम उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपको नोट्स पक्का बनाने चाहिए। खासकर उस एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेज है, और वो भी ऑब्जेक्टिव स्टेज। तो आपने नोट्स बनाए थे अपनी जर्नी में? हाँ हाँ हाँ, नोट्स तो मुझे स्पेसिफिकली जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है लाइक अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल लेवल लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इसमें मैंने नोट बनाया था। क्योंकि मुझे पता था कि इसका सॉलिड कंटेंट तो है नहीं किसी के बिल्कुल। पास। तो मेरे पास जो भी कंटेंट आता था मैंने वो नोट में ऐड किया, और जस्ट एग्जाम से पहले वो रिवाइज करने में बहुत मदद मदद मिला। बहुत बढ़िया। और कौशिक, मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर हाँ, प्रिपरेशन में? मेरा पूरा प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के अराउंड ही था। लाइक आई थिंक मैंने जहाँ पर भी मॉक मॉक टेस्ट मिला मुझे, मैं दिया। तो बहुत मुझे बढ़िया। ये पता था कि मॉक टेस्ट अगर, इनफैक्ट आफ्टर मतलब 10 दिन मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद भी मॉक्स मॉक्स दिया मैंने। तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपका वीकनेस ये है, बिल्कुल। आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हुआ नहीं है। तो वो गाइडेंस हर वक्त मिलता ही है मॉक टेस्ट में। बहुत बढ़िया। कौशिक, एक ना बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा पहले ही मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आता है। हम्म मतलब जैसे आपने 300 नंबर का टेस्ट दिया ईपीएफओ का, और आपके हम्म नंबर आए कुछ 130 120। तो कई बार हम्म ना बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार नहीं, मॉक टेस्ट नहीं देने, पढ़ाई करता हूँ अच्छे से और एग्जाम में आके बेस्ट दूंगा। तो क्या हम्म। वो सही स्ट्रेटेजी होती है? नो नो नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। मेरा दिमाग में ये होता था कि चलो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये रेक्टिफिकेशन के लिए है। और अगर कम नंबर आए फिर? रेक्टिफिकेशन मैंने दिमाग में ये होता था कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये रेक्टिफिकेशन के लिए है। इवेल्युएशन के लिए नहीं है? हाँ नहीं है। रेक्टिफिकेशन मतलब मुझे, मैं जैसा पढ़ाई कर रहा हूँ, शायद मैं एक टॉपिक को ज्यादा पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक को कम वैल्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक बैलेंस्ड तैयारी के लिए भी एक फुल मार्क्स जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल। बता देता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये पोर्शन बहुत वीक है, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत सही स्ट्रेटेजी है कौशिक है। कौशिक, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा पर्सनल है, हैं। कि या सर। अगर ईपीएफओ ईओ में सिलेक्ट नहीं होते तो क्या प्लान रहते फिर आगे के? हाँ सर, वो तो है, लेकिन मैंने 2 स्टेट पीसीएस अभी दिया हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, मेंस ठीक दिया है। हुआ है। ठीक है। तो शायद उसमें कुछ होता, शायद, मुझे नहीं पता, शायद। और मैं लास्ट टाइम नाबार्ड दिया था विदाउट प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये भी था। तो उसमें शायद मैं 3 नंबर से रह गया। ओह। अभी नाबार्ड शायद सामने होगा, तो ठीक। वो भी मैंने फॉर्म भरा। ठीक। और आरबीआई मेरा नहीं हुआ 0.5 के लिए। तो ये सब मेरे दिमाग में था कि चलो ये सब है, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट पुट करूँ शायद ये मुझे मिल सकता है। तो अभी ड्रीम जॉब मिल गई है या फिर अभी कोई और हाँ, गोल बाकी है? इस लाइक सर, आप भी जानते होंगे कि ये तो ड्रीम जॉब नहीं होता। तो फिर भी एक सिविल सर, ये भी एक सिविल सर्विस है, लेकिन एक तो सपना है कि यूपीएससी दे के क्रैक करना है अपना, जो बहुत भी बढ़िया। बहुत प्रिपरेशन बढ़िया। जो सोच के शुरू किया था वो बिल्कुल। मिले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौशिक, अब बात करते हैं थोड़ा इंटरव्यू की। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर इंटरव्यू देने से पहले मैं तो बहुत नर्वस था, लाइक ये तो लाइक मैंने सोचा था कि यूपीएससी के लिए जाऊंगा, पहली बार बिल्कुल। यूपीएससी बिल्कुल। में इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन पहले गया तो बहुत नर्वस था। जो भी फॉर्मेलिटीज थे वो अच्छे से हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो इंटरव्यू रूम में घुसा, और जब मैम को देखा और 3 पैनलिस्ट थे उनको देखा, बैठा, और जब वो लोग बात करना शुरू किया, तो वो मुझे ईज फील कर गया कि ठीक है, ये भी लोग हैं, ये लोग मुझे खा नहीं लेंगे। सही है, वो सही है। अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मेरा जो नर्वसनेस था वो कम हो गया थोड़ा सा। तो आपका उसके पैनल बाद कौन सा था? मेरा सुजाता मेहता मैम का पैनल ओके। था। और कितने मेंबर्स, 4 मेंबर्स थे आपके पैनल चार में? मेंबर से, हाँ हाँ। तो तो हाँ हाँ सर बताइए। तो कौशिक, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में? हाँ सर, मेरा जो डैफ में से जो मेरा हॉबी था, मैंने लिखा था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी न्यूज़ है वो देखना और पढ़ना पसंद है। आप तो ऐसे सेकंड स्टूडेंट हो जिससे मैंने हॉबी सुनी है। अभी हमने एक और बच्चे का इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले, अच्छा। एंड उन्होंने भी यही सेम हॉबी बताई कि उनका भी काम ये था कि उनको आईआर की न्यूज मतलब नोट करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मतलब जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किया तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आईआर का, क्योंकि इसका तो कोई स्टैटिक चीज है नहीं बिल्कुल। अभी। एक तो होता है, तो मैंने ऐसा किया। तो
एक पैनल में जो फर्स्ट पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझे आईआर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा दो तीन। तो ऐसे कोविड के बारे में पूछा, श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में पूछा, जो मैंने आंसर किया। राइट। उसके बाद उन्होंने ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा, तो एलजीबीटीक्यू के बारे में पूछा। तो एग्जैक्ट कुछ इशू था, वो मुझे पता नहीं था। ओके। तो मैंने बताया कि सॉरी सर, आई डोंट नो इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। देन वो उसने उनका जो नेक्स्ट मेंबर था, उन्हें ट्रांसफर किया। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट मेंबर था, उन्होंने उन्होंने भी एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म पूछा, 377 के बारे में पूछा, डीपीएसपी के बारे में पूछा, इकोनॉमी में वो एफआरबीएम के बारे में पूछा। ओके। तो और एक क्वेश्चन था डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें मैंने डेटा जो बोला वो गलत था। मैंने जो बोला, तो मैंने सर बोला कि अच्छा आई यू श्योर। मैंने बोला सर आई एम नॉट श्योर, बट मैंने पढ़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो राइट। राइट। वो मुस्कुराए, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। ग्रेट। तो इसी जब मैं दूसरे पैनलिस्ट से बात कर रहा था, शायद कुछ आंसर में मैंने प्रियम्बल का जिक्र किया। जो नेक्स्ट पैनलिस्ट थे, वो एक क्वेश्चन किया, उसके बाद मुझे बोला कि पूरा प्रियम्बल वर्ड टू वर्ड मुझे बताओ। ओके। तो शायद मुझे मालूम नहीं कैसे, लेकिन डे बिफोर दैट आई रिमेम्बर द ग्रेट। प्रियम्बल। बहुत सो बढ़िया हो गया ये तो। हाँ, तो मुझे उसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा चलो कुछ तो मिल गया कॉमन। राइट। तो राइट। मैंने पूरा बता दिया। तो पैनलिस्ट बोला अच्छा तुम अच्छा किए हो, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो तुम बहुत से अच्छा किए हो। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वो दो क्वेश्चन पूछे, जो शायद अकाउंटिंग के बारे में था, मतलब एक्ट के बारे में था, उस एक्ट के बारे में कुछ डीप। तो मैंने बोला सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। देन दे सेड ओके थैंक यू, यू कैन। ग्रेट। ऐसा शायद 15-20 मिनट चला होगा मेरा ओके। इंटरव्यू। तो कौशिक, इंटरव्यू के लिए आपने कोई खास प्रिपरेशन करी थी? सर जब मेरा प्रीलिम्स के रिजल्ट आए थे, आप लोगों ने एक इंटरव्यू हाँ जी, सेशन कंडक्ट कंडक्ट करवाया किया था। था। हाँ, उसमें मैंने किया था, वो भी लाइक जो सर थे एक्सपीरियंस, जो भी फीडबैक दिए उसके ऊपर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने दो तीन मॉक्स भी दिए जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। उधर से थोड़ा सा लाइक ये भी सोचना चाहिए हमें कि हर एक एडवाइस नहीं लेना होता है। बिल्कुल सही बात है। वो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, जो भी मुझे नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि हाँ इसको नहीं लेते, मैंने वो नहीं लिया ऐसे। तो तो जो ओवरऑल मुझे हेल्प किया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया, मतलब आपका इंटरव्यू है ना? मुझे तो लगता है अच्छा गया, मालूम नहीं है मार्क्स कैसा है। नहीं, बहुत बढ़िया। कौशिक, आपसे बस मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगा कि आपका कोई मैसेज हमारे बच्चों के लिए, एक एडवाइस जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक बहुत टफ जर्नी है, मतलब बहुत इजी वे आउट नहीं है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और एक फ्रस्ट्रेशन आती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, और आप उस पर्टिकुलर दौर से गुजरे भी हुए हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग? सर मुझे यही बोलना है कि पहली बात तो परसिस्टेंस रखना है, जो भी करना है। क्योंकि कुछ लोग का होगा कि 1 साल में हो जाएगा, कुछ लोग का होगा 3 साल लग जाएगा। तो इससे तो होप नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। और एक फाउंडेशन क्रिएट सबसे पहले करना है कि अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, अगर मुझे 2 साल भी लगे, अगर पहले मुझे फाउंडेशन क्रिएट करना है, मेरा बेसिक क्रिएट करना है, मुझे सिलेबस को अच्छी सी तरह से पहचानना है, उसका प्रीवियस ईयर जो भी है उसको अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर मुझे कोई पूछे भी हाँ ये कौन साल में आया प्रीवियस ईयर, तो मुझे पता पता हो। होना चाहिए कि हाँ। बिल्कुल। तो अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और एक परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी, ये चार चीजें होता है, अगर टाइम भी लगेगा लेकिन हो जाएगा, मुझे बहुत ये बढ़िया, लगता बहुत बढ़िया। और एक और बात, आपसे बात करके कौशिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप ना एक बहुत ग्रास रूट लेवल के पर्सन हो, और बहुत अच्छी मेहनत आपने करी अपने इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के दौरान, और वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, और आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो उस चीज के। तो कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने का, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, और आप अपने हर एक गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच कौशिक, थैंक यू वेरी है। थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके कौशिक।